Good morning, students of class 9th. Today I am going to teach you English literature lesson 4 in the kingdom of fools. Okay, about the author. A.K. Ramanujan was born on 16 March 1929 in Mysore. He was a poet and scholar. He wrote in English and Kannada. Besides English and Kannada, he knew Tamil, Telugu and Sanskrit. Ramanujan got doctorate in English literature. He was awarded MacArthur Fellowship, Satya Sahitya Academy Award and Padma Shri. Ramanujan died on 13 July 1993 in Chicago, United States. Okay. About the story. The present story in the Kingdom Fools is a Kannada folktale from A.K. Ramanujan's folktale from India. Imagine if you are in the Kingdom of Fools where people work during night and sleep during day, where you can buy anything very cheap of the same price of the daddu. How delighted you will feel. But in such a kingdom of foolish king and equally foolish minister, you can also find yourself in a difficult situation. A guru and his disciple arrive in the same kingdom, and one day the greedy disciple finds himself in the jaws of death. He does his life saved. Let's read. Okay, यानी in the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night till their field and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear to death. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day a guru and his disciple arrived in that city. It was a beautiful city. It was a broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly businesses. Okay, यानी इसमें जो लेखक है वो बताते हैं कि मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे. क्या था वहाँ पे? राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे. राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे. ठीक है, वे दूसरे राज्यों की तरह राजकाज नहीं चलाते थे. इसलिए उन्होंने रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का फैसला कर लिया. उन्होंने आदेश दिया कि हर कोई रात में जागे, अपने खेत जोते और अपने व्यापारों को केवल अंधेरा होने के बाद चलाया करे. जैसे ही सूर्य ऊपर आए उगे वो सो जाए. कोई भी जो आदेश का उल्लंघन करेगा, जो आदेश को नहीं मानेगा, उल्लंघन करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा. लोगों ने मृत्यु दंड के भय से वैसा ही करना स्टार्ट कर दिया जैसा कि उन्हें कहा गया था. राजा और मंत्री अपनी योजना की सफलता पर प्रसन्न थे. एक दिन एक गुरु तथा उनका शिष्य शहर में घूमने आए. ओके, यह शहर बहुत सुंदर था. दिन का समय था, लेकिन आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था. हर कोई सोया हुआ था. एक चूहा भी नहीं घूम रही थी. यहाँ तक कि गाय बैलों को भी दिन में सोना सिखाया गया था.
दोनों अजनबी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे कि कुछ उन्होंने अपने चारों ओर देखा था। शाम तक शहर में चारों तरफ ही घूमते रहे, जब तक कि अचानक सारा शहर जाग नहीं गया और अपनी रात का जो क्रियाकल्प नहीं करने लग गया। ओके, यानी नेक्स्ट स्टेंजा। द टू men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To tell astonishment, they found that everything cost the same and single daddu, whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a daddu. It cost a daddu. The Guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. Okay, यानी इसमें लेखक कहते हैं कि दोनों लोगों को भूख लगाई थी, दोनों लोगों को भूख लग रही थी। अब जब दुकानें खुल गई थी, वे कुछ खाने पीने का सामान खरीदने चले गए। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पाया कि हर चीज़ का दाम एक ही था। एक अकेला जो डड्डू था, चाहे उन्होंने चावल की एक मात्रा खरीदी हो या केले का एक गुच्छा, उसका मूल्य एक डड्डू था। गुरुजी और उनका शिष्य प्रसन्न थे। ठीक है, दोनों प्रसन्न थे। उन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं सुनी थी। वे 1 रुपये में सारा भोजन खरीद सकते थे और जो वो चाहते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay here. This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. The Guru said, गुरु ने कहा, they are all fools. They won't last very long and you can't tell what they will do. Do you know? यानी जब वो जो है खाना पक चुकने के बाद गुरुजी को एहसास हुआ कि यह राज्य जो है मूर्खों से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? ये राज्य मूर्खों से भरा हुआ है और उनके लिए यहाँ रुकने के कोई विचार नहीं होगा। यह स्थान हमारे लिए नहीं है, आओ चलें। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, लेकिन शिष्य वह स्थान छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ सब कुछ सस्ता जो मिल रहा था, ठीक है, वह बस अच्छा सस्ता खाना चाहता था। गुरुजी ने कहा, वे सब मूर्ख हैं, यह सब ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा और तू नहीं कह सकता कि इसके बाद तेरे साथ वो क्या करेंगे। ओके, बट द डिसिपल wouldn't listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, do you want? I am going, and left. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side scraped bull. ओके, यानी अब क्या होता है कि वो जो शिष्य ने गुरुजी की बुद्धिमानी की बात को नहीं सुना था, वह ठहरना चाहता था। अंत में वो वहीं पर ठहर गया। ठीक है, रोज़ पेट भर के खाना खाने लगा। केले और घी, चावल, गेहूँ पवित्र यानी और आवारा गली के मसान की तरह मोटा हो गया। यानी सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें, बढ़िया चीज़ें, महंगी चीज़ें सस्ते में मिल रही थी, तो उन्हें वो खा कर मोटा हो गया। ठीक है, ऑन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। ओके, he had made a hole in the wall and sneaked in as he was crying out his loot. The wall of the old houses collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained. A wall fell on him and killed him. This merchant is blamed too. He should have built a good, strong wall.
You must punish the wrongdoer and compensate the family for the injustice. ओके, यानी एक दिन खिली धूप में, यानी मौसम अच्छा था, धूप खिल रही थी, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक चोर ने एक धनी व्यापारी के घर में सेंध लगा ली। ठीक है, यानी दीवार में छोटा सा होल कर लिया, और उसके बाद क्या हुआ, चुपचाप घर के अंदर चला गया। और जब वह अपनी लूट को बाहर ले जा रहा था, तब पुराने मकान की दीवार उसके सिर पर ढह गई, गिर गई, उसी स्थान पर मर गया। उसका भाई राजा के पास दौड़कर गया और शिकायत की, हे महाराज, जब मेरा भाई अपना प्राचीन व्यापार कर रहा था तो एक दीवार उस पर गिर गई और वह मर गया। दोष व्यापारी का है, उसे अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। आपको उस अधर्मी को दंडित करना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए तथा परिवार को इस अन्याय की क्षतिपूर्ति करानी चाहिए। ओके, द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस। ओके, व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, When the merchant arrived, the king questioned him, "What is your name?" "Such as such, your highness." "Were you at home?" Okay. "Were you at home when the dead man burgled your house?" "Yes, my lord. He broke in and all the wall was weak. It fell on him. The accused pleaded guilty. Your wall killed that man's brother. You have murdered a man. We have to punish you." ओके, यानी उसने कहा कि राजा ने कहा कि अब क्या किया जाएगा, न्याय किया जाएगा, चिंता मत करो। तुरंत मकान के मालिक को बुला लिया और जब व्यापारी आया तब राजा ने उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे। ओके, क्या पूछा? क्या तुम घर पर थे जब मृतक ने तुम्हारे घर पर चोरी की? जब मृतक ने तुम्हारे घर पर चोरी की थी, जब तुम क्या घर पर थे? ओके, यानी उन्होंने कहा, हाँ महाराज, उसने सेंध लगाई थी और दीवार कमज़ोर थी, वह उस पर गिर पड़ी। ठीक है, आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। तुम्हारी दीवार ने इस भाई को मार डाला है। तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है। हम तुम्हें दंडित कर देंगे। ठीक है, हमें तुम्हें दंडित करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद क्या होता है? Lord said, the helpless merchant, "I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't put it right. You should punish him." "Who is that?" "My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby." The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. "You there, did you build this man's wall in his father's time?" "Yes, my lord, I did." Okay. Yes, my lord, I did." "What kind of a wall is that this you built?" "It is fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death." ओके, अब वो क्या होता है देखिए। स्वामी, असहाय व्यापारी ने कहा कि मैंने दीवार नहीं बनाई थी, यह तो वस्तुतः उस व्यक्ति का दोष था। उस व्यक्ति का दोष है जो कि जिसने दीवार बनाई थी, इसने इसे ठीक से नहीं बनाई थी। आपको उसे दंडित करना चाहिए। वह कौन है? ठीक है, उन्होंने पूछा, हु इज़ दैट? वह कौन है?
स्वामी, यह दीवार मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी। मैं उस आदमी को जानता हूँ, अब तक वह बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, वह पास ही में रहता है। राजा ने उस राजमिस्त्री को जिसने दीवार बनाई थी उसको बुलाने के लिए दूत भेज दिए। ठीक है, वे उसके हाथ पांव बांधकर उसे ले आए। अरे क्या तुमने इस आदमी की दीवार इसके पिताजी के समय से बनाई है? ठीक है, हाँ महाराज, मैंने बनाई थी। यह किस तरह की दीवार तुमने बनाई थी? यह बेचारे आदमी पर गिर गई और उसे मार डाला। तुमने उसकी हत्या की है। हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे। ठीक है, हमें तुम्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। बिफोर द किंग could order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me. Before you gave your orders, it's true, I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up the down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives." अब देखिए इसमें लेखक क्या कहता है। लेखक कहता है कि इससे पहले कि राजा उसे फांसी देने का आदेश देता, बेचारे राजमिस्त्री ने प्रार्थना की कि कृपया अपना आदेश देने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। यह सच है कि मैंने यह दीवार बनाई थी और यह अच्छी नहीं थी, लेकिन ऐसा इसलिए था कि मेरा मन इसमें नहीं था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय एक नाचने वाली जो लड़की थी, जो कि सारा दिन उस गली से इधर उधर अपनी पायल छुन करके नाचती रहती थी और मैं अपनी आंखें, अपना दिमाग उस दीवार पर नहीं रख सका। ओके, उस दीवार पर नहीं रख सका जिसे मैं बना रहा था। आपको उस नाचने वाली लड़की को पकड़ना चाहिए, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। ठीक है, अब वो जो है सारा दोष जो है उस लड़की पर डाल दिया उसने। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इनटू इट. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. The dancing girl. Now an old woman came trembling to the court. Did you wall up and down that street many years ago while the poor was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. So you did wall up and down with your anklet jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. Okay, अब वो बताती है कि तुम ठीक कहते हो, मामला गहरा गया है, यानी मामला बहुत डीपली सीरियस हो गया। हमें इसमें जाना पड़ेगा। इतने जटिल मामलों का न्याय करना आसान नहीं है। पकड़ना चाहिए उस नर्तकी को, यानी वो जो लड़की जो डांस करती थी, ठीक है, उसको पकड़ना चाहिए, चाहे वो जहाँ भी हो। नाचने वाली लड़की अब बूढ़ी हो चुकी थी। क्या हो गया था? अब वो बूढ़ी हो गई थी और वह कांपती हुई दरबार में आई। क्या तुम कई वर्ष पहले इस गली में इधर से उधर जा रही थी जबकि वह बेचारा आदमी दीवार बना रहा था? ठीक है, क्या तुमने उसे देखा था? हाँ मेरे स्वामी, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो तुम इधर उधर आ जा रही थी अपनी पायल झनकाते हुए। तुम युवा थी, तुमने उसका ध्यान बटा दिया था, इसलिए उसने खराब दीवार बनाई। ओके, प्लीज टर्न ओवर। It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. Okay, यानी अब जो है लड़की को बजाय उस दीवार बनाने वाले के लड़की को पनिशमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, She thought for a minute and said, "My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy
scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. Okay, that was this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the diamond goldsmith's fault. अब वो लड़की बताती है, वो कहती है कि यह एक गरीब चोर पर गिर गई है और उसे मार डाला है। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला है, तुम्हें दंड मिलेगा। ठीक है, उस लड़की से बोला गया। तो वो बोलती है कि उस 1 मिनट के लिए सोचा और कहा, स्वामी रुकेंगे? ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। मैं अब जान गई हूँ कि मैं गली में आ जा क्यों रही थी। मैंने सुनार को अपने लिए आभूषण बनाने के लिए कुछ सोना दिया था। वह आलसी बेईमान आदमी था। उसने इतने सारे बहाने बनाए। ठीक है, बहाने बनाए, कहा कि मैं इसे अब दूंगा या फिर दूंगा, यानी अगले दिन ले जाना, ऐसा कहने लगा वो। मैं इसे तब दूंगा वगैरह वगैरह सारे दिन। उसकी वजह से ही मैं उसके घर 1 दर्जन बार आती जाती रही और तभी इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा। इसमें मेरा दोष नहीं है स्वामी, यह घटिया सुनार का दोष है, जिसने कि मेरी जो आभूषण था टाइम से नहीं बनाया और लेट किया और बार बार मुझे टाइम देता रहा और मैं इधर उधर जाती रही। ओके, पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्यूट राइट, थॉट द किंग, weighing the evidence, we have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. The king's baffles searched for the goldsmith, who was hiding in a corner of his shop. When he heard the executions against him, he had his own story to tell. Okay, अब देखिए क्या होता है। वो वहाँ पहुँच जाते हैं, यानी वो सुनार के पास पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इस स्टोरी में, बेचारी वो बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, राजा ने सोचा, साक्ष्य को तोलते हुए कहा कि अंततः हमें वास्तविक दोषी मिल ही गया और पकड़ कर लाओ उस सुनार को जहाँ कहीं भी वो छुपा हो। राजा ने ऑर्डर भी दे दिया, उसे पकड़ के लाओ जहाँ कहीं भी वो छुपा हो। तुरंत राजा के कारिंदों ने उस सुनार की तलाश की जो अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ बैठा था। ओके, जब उसने अपने विरुद्ध आरोप सुना, उसने अपनी खुद की कहानी सुना दी। ठीक है, वो कहने लगा, माय लॉर्ड, क्या कहा उसने, माय लॉर्ड, ही सेड, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ. ओके, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ. It is true, I made this dancer come many times to my door. I gave her excuse because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. ठीक है, अब देखिए वो सुनार क्या कह रहा है. सुनार कह रहा है कि स्वामी, उसने कहा मैं गरीब सुनार हूँ. कैसा सुनार हूँ? मैं गरीब सुनार हूँ. जब ये सच है कि इस नर्तकी को कई बार मैंने अपने द्वार पर बुलाया. मैंने वो इसलिए बुलाया कि उस समय एक धनी व्यापारी ऑर्डर ख़त्म करने से पहले उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था. मैंने उनके लिए आभूषण बनाए थे क्योंकि धनी व्यापारी ऑर्डर ख़त्म करने से पहले उसके आभूषण पूरे नहीं बना सकता था. उनके यहाँ शादी आ रही थी, वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे. ओके, आप जानते हैं कि धनी व्यक्ति कितने अधीर होते हैं, यानी उन्हें चैन ही नहीं होता. उन्हें बस ऑर्डर दिया, पैसे दिए और तुरंत ही माल चाहिए. ओके, अब वो कह रहा है कि हु इज़ द रिच, हु इज़ दिस, यानी वो भी बच गया, सुनार भी बच गया. अब राजा कह रहा है कि हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी. ठीक है, यानी कौन है वो धनी आदमी, धनी व्यापारी जिसने कि अपनी आभूषण फिनिश होने से पहले
इस लड़की की ज्वेलरी नहीं बनाने दी। मेड हर वॉक अप एंड डाउन विच, और इस लड़की को इधर उधर घुमाता रहा। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, ओके, विच हैज़ नाउ fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? ओके, अब वो राजा से पूछता है कि कौन है, यानी वो जो है वो पूछता है कि कौन है वो धनी व्यापारी जिसने तुम्हें इस निर्धन स्त्री के आभूषण पूरे करने से रोका था, उसे इधर उधर चलाया था, जिसने राजमिस्त्री का ध्यान भटका, जिससे दीवार में गड़बड़ हो गई, जिससे उस निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई और उसे मार डाला है। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? ओके, द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नोन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king. Back to the merchant when he was rudely summoned back to the court, arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." ओके, उसने कहा, सुनार ने उस आदमी का नाम बताया और वह और कोई नहीं था वरन मूल स्वामी था, उसका मकान था जिसकी दीवार गिरी थी। अब न्याय घूम फिरकर वहीं आ गया है। राजा ने सोचा कि वापस व्यापारी पर जब उसे कठोरता से वापस दरबार में बुलाया गया, पूछा गया और रोता हुआ वह वहाँ पर आया। मैं यहाँ नहीं था, बल्कि मेरे पिताजी थे जिन्होंने आभूषण बनाने को दिया था। वो तो मर चुके हैं और मैं इनोसेंट हूँ, मैं निर्दोष हूँ। ठीक है, अब वो कहता है, बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसिबली, इट इज़ ट्रू, योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ही इज़ डेड, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज पैलेस, You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. You must die. Okay. अब वो कहता है कि लेकिन राजा ने मंत्री से परामर्श किया और निर्णय दिया, यह सच है कि तुम्हारे पिताजी ही असली क्या हैं, असली गुनहगार हैं। ठीक है, असली ही हत्यारे हैं, वे मर चुके हैं, इसलिए उनके स्थान पर किसी को दंडित किया जाना चाहिए, किसी को तो दंड मिलना चाहिए। तुमने अपने अपराधी पिता से ये सब पैतृकता में पाया है, यानी आपने हेरिटेज में अपने पिता से ये गुण पाया है। ठीक है, उनकी संपत्ति और साथ ही उनके पाप में भी तुम भागीदार हो। मैं तो तुम्हें देखते ही जान गया था, तभी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम इस भयानक अपराध के मूल में हो, तुम्हें तो अब मरना ही पड़ेगा। ओके, एंड द ऑर्डर अ न्यू स्टेक टू बी द मेड रेडी फॉर एक्सक्यूशन एज द सर्वेंट्स sharpened the stake and got it ready for the final impaling the criminal. It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. ओके, अब क्या होता है देखिए, उसने यानी राजा ने फांसी के लिए एक नई सूली तैयार करने का आदेश दिया। ठीक है, जब नौकरों ने सूली को तेज किया, अपराधी की अंतिम सजा के लिए तैयार किया, तो मंत्री को लगा कि धनी व्यापारी ठीक से सूली पर फांसी देने के लिए अधिक ही पतला है। यानी वो पतला है ना। उसने राजा का ध्यान इस ओर दिलाया। राजा भी इस विषय में चिंतित हो गया कि जो फांसी देगा ये तो इंसान पतला है। ओके, यानी अब क्या होता है देखिए, व्हाट शैल बी डू,
he said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had flattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. ओके यानी वो कहते हैं कि हम क्या करें, वह बोला। तब अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। उसने कहा, क्या कहा उसने, देखिए, उसने कहा कि जो कुछ उन्हें करना है वह इतना मोटा आदमी तलाशना है जिस पर फंदा ठीक आए। नौकरों को तुरंत सारे शहर में भेज दिया गया। ऐसे आदमी की तलाश की गई कि जो कि मोटा हो, जिसके फंदा फिट आ जाए। ठीक है। उनकी दृष्टि शिष्य पर पड़ी जो महीनों तक केले, चावल, गेहूं और घी खा खा कर मोटा हो गया था। ओके, प्लीज टर्न ओवर। ओके, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसने कहा, व्हाट हैव आई डन wrong? I am innocent. I am sannyasi, he cried. I am sannyasi, he cried. That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place execution. He remembered his wise guru's word. This is a city of fools. You don't know what they will do next. Okay. While he was waiting for death, he prayed to Guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The Guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see future as he could see the present and the past. He arrived to save his disciple, okay, who had got himself into such scrape through love of food. देखिए क्या होता है, अभी होता है कि मैंने क्या गलत किया है, मैं निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, वह चिल्लाया जोर से। ठीक है, यह सच हो सकता है कि, लेकिन यह राजसी निर्णय है। वह इतने मोटे ताजे आदमी को तलाशने में लग गए जिसे फंदा ठीक बैठे। वे बोले, इसे फांसी दे दीजिए। ठीक है, और फांसी दिए जाने के स्थान पर ले गए। उसे अपने बुद्धिमानी गुरुजी के शब्द याद आए। ठीक है, क्या शब्द याद आए? जब वो पहले वहाँ रुकने के लिए तैयार हो गया था, गुरुजी ने कहा था, यह मूर्खों का शहर है, तो मैं नहीं पता कि वो इसके साथ क्या करेंगे। जब वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था तो उसने अपने मन में गुरुजी को प्रार्थना की। ठीक है, गुरुजी की प्रार्थना की और गुरुजी को याद किया, यह कहते हुए कि वे जहाँ भी हों उसका रोना सुन लें। गुरुजी ने सब कुछ स्वप्न में देख लिया, जिनमें कि जादुई ताकत थी और वे दूर तक देख सकते थे और वे भविष्य देख सकते थे, वैसे ही जैसे वे वर्तमान और भूतकाल को देख सकते थे। वे तुरंत शिष्य को बचाने के लिए तैयार हो गए और वहाँ पर प्रकट हो गए, जिसने खुद को खोने के प्रेम के चक्कर में ऐसे मुसीबत में डाल लिया हो। ओके, as soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of king, who is greater, the Guru or the disciple? Of course, the Guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to stake first. Put my disciple to death after me. Okay, यानी गुरु जो कह रहे हैं कि then put me to stake first. Put my disciple to death after me. Okay. When the disciple heard this,
he understood and began to clamor me first. You brought me here first, put me to death first, not him. ओके, यानी फिर वो कहने लगा, जैसे ही वे आए, जैसे ही उसके शिष्य के गुरुजी आए तो उन्होंने अपने शिष्य को डांटा, बहुत कस के डांटा पहले तो, और फुसफुसाकर, कान में फुसफुसाकर कुछ कहा, बताया। तब वे राजा के पास गए और उन्हें संबोधित किया, हे राजाओं, मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। ओके, कौन अधिक बड़ा है, गुरु या शिष्य? निश्चित रूप से गुरु, है ना। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है। तो गुरु ने कहा, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ, ठीक है, मेरे शिष्य को मेरे बाद फांसी लगाना, ठीक है। जब शिष्य ने यह सुना तो वह समझ गया, उसने तेज तेज चीखना शुरू कर दिया, मुझे पहले, मुझे पहले, पहले मुझे लगाओ, पहले मुझे लटकाओ, ठीक है। आप मुझे यहाँ पहले लाए थे, मुझे पहले मृत्युदंड दो, उन्हें नहीं, ठीक है। उधर गुरुजी चिल्ला रहे थे कि पहले मुझे दो, ठीक है। अब क्या होने लगा उसके बाद, उसके बाद द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. द किंग was puzzled by the behavior. He asked the guru, why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake. You shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the guru. Okay. अब वो क्या कह रहा है गुरु, उसने कहा कि गुरुजी, why there is some mystery here. As a wise man you must take the understand. ठीक है, गुरुजी तथा शिष्य अब इस बात पर लड़ पड़े कि पहले कौन जाए. राजा इस व्यवहार से चक्कर में पड़ गया. उसने गुरुजी से पूछा कि आप मरना क्यों चाहते हो. हमने इसे इसलिए चुना था क्योंकि इसे फांसी के लिए एक मोटे व्यक्ति की आवश्यकता थी, ठीक है, और उसको ये फांसी का फंदा फिट भी आ गया है, ठीक है. आपको मुझको ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए. मुझे पहले फांसी पर चढ़ा दो. गुरुजी ने उत्तर दिया. ओके, क्यों, यहाँ कोई रहस्य है. आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपको मुझे अवश्य समझना चाहिए. ओके, अब वो कह रहा है कि विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू. आस्क्ड द गुरु. द किंग गेव हिम हिज सोलमन वर्ड. द गुरु टुक हिम aside out of the servant's ear hot and whispered to him, do you know why we want to die right now? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of the god of justice. It's new, it has never the criminal on it. Whosoever die on it first will be reborn as the king of this country, and whosoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy themselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember. Okay, अब वो क्या कह रहा है, जो गुरु था वो कह रहा है कि यदि मैं आपको बता दूं तो क्या आप मुझे पहले मृत्युदंड देने का वादा करते हैं. गुरुजी ने पूछा कि राजा ने उसे पक्का वचन दे दिया. ठीक है, मैं पूछो क्या पूछना चाहते हो. गुरुजी उसे एक ओर ले गए नौकरों से दूर ताकि वो सुन न सकें और उससे फुसफुसाकर बोले, क्या आप जानते हैं कि हम एकदम अभी क्यों मरना चाहते हैं. आप जानते हैं महाराज कि हम गुरु और चेला दोनों एकदम से क्यों मरना चाहते हैं. ठीक है, तो वो कहता है हमने सारा संसार घूमा है लेकिन हमने ऐसा नगर और आप जैसा राजा कहीं नहीं देखा.
ठीक है। यह फंदा न्याय के देवता का फंदा है, यह नया है, इस पर कोई अपराधी फांसी नहीं चढ़ा है। जो कोई भी इस पर पहले मरेगा उसका पुनर्जन्म इस देश के राजा के रूप में होगा, और जो कोई भी बाद में जाएगा वो मरेगा वह इस देश के भावी मंत्री की तरह होगा। हम अपने तपस्वियों जैसे जीवन से उकता गए हैं, कुछ समय के लिए राजा और मंत्री के रूप में आनंद लेना चाहते हैं। हमने सोचा यही अच्छा उपाय होगा। स्वामी, आप अपना वचन निभाएं और हमें मृत्युदंड दें। मुझे पहले याद रहेगा ना? मुझे पहले दंड देना चाहिए, आपको याद रहेगा ना? ओके। द किंग वॉज नाउ थ्रोन into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered to execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again. Holy men do not tell lie. Okay, he said, and the minister agreed. Okay, अब राजा को पता है, राजा गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, उसने कहा कि वह राज्य को जीवन के अगले चक्र में किसी और को नहीं देना चाहता, वो स्वयं राजा बनना चाहता है। उसे समय चाहिए, इसलिए उसने फांसी को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया और अपने मंत्री के साथ गुप्त प्रेरणा की। क्या प्रेरणा की? कि उसने बताया कि हमारे लिए ये अच्छा नहीं है, अगले जन्म में राज्य औरों को दे दिया जाए, हम दोनों स्वयं फांसी पर चढ़ जाएंगे, हमारा पुनर्जन्म फिर से राजा और मंत्री के रूप में होगा। पवित्र व्यक्ति, यानी ये जो गुरु हैं पवित्र व्यक्ति हैं, ये झूठ नहीं बोलते। उसने कहा, मंत्री सहमत हो गया। यानी राजा को पहले लालच आ गया कि पहले वो फांसी पर चढ़ेगा, फिर उसका मंत्री को भी लालच आ गया। ओके, प्लीज टर्न ओवर। ओके, अब क्या होता है देखिए। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and minister. The city was in confusion. Okay. अब वो वहाँ पे क्या होता है कि अब लास्ट में राजा ने जो किसी को दंड नहीं दिया, वो खुद उसको लालच आ रहा है। ठीक है, कि मर के वो स्वर्ग में मर के वो नेक्स्ट जन्म में फिर से राजा बनना चाहता है। वो अपना राज्य किसी और को क्यों दे? ठीक है, अपना राज्य किसी और को क्यों दे? तो वो बोलता है कि इसलिए उसने जल्दबाजी में कहा, उसने कहा कि इसलिए राजा ने जल्लादों से कहा, हम आज रात अपराधियों को भेज देंगे, अपराधियों को यहाँ से मुक्त कर देंगे। ओके, फांसी का फंदा उतार देंगे, मुक्त कर देंगे, और जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आए उसे पहले फांसी चढ़ा देंगे, तब दूसरे व्यक्ति के साथ भी वैसा ही करना होगा। यह मेरा आदेश है, कोई गलती मत करना। उस रात राजा और उसको चुपचाप कारागार में गए। राजा और उसका मंत्री चुपचाप कारागार में चले गए, जेल में गए। ठीक है, और वहाँ जाकर गुरुजी और शिष्य को मुक्त कर दिया और अपने आप उन दोनों का वेश बनाया। ठीक है, और जैसा कि पहले ही राजसी सेवकों के साथ तय था, उन्हें फांसी के फंदे तक ले जाया गया और तुरंत उन्हें फांसी दे दी गई। ओके, यानी अब क्या होता है देखिए। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. We noticed
town unnoticed. We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the Guru and the disciple to be their king and their minister. It didn't take many arguments pursued the disciple, but it took longer to pursue the Guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and silly minister on the condition that they could change all the old laws. Okay, from then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a duddu. It became like any other place. Okay, अब क्या होता है वहाँ पे कि जब मृत शरीरों को कौवों तक और गिद्धों तक फेंकने के लिए उतारा गया, ठीक है, यानी उनका जो मृतक शरीर था राजा का और मंत्री का, उनके शरीर को कौवों और गिद्धों को आगे फेंकने के लिए उतारा गया तो लोग भयभीत हो गए। उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री के शव को देखा। नगर में भ्रम की स्थिति फैल गई। वो कहने लगे, अरे अब वो तो फांसी गुरु और चेला को दी जाने वाली थी, ये मंत्री और राजा और मंत्री कैसे मर गए। सभी लोग परेशान हो गए और नगर में भ्रम की स्थिति बन गई। सारी रात वे शोक मनाते रहे, रोते रहे, ठीक है, और राज्य के भविष्य के विषय में विचार विमर्श करते रहे। कुछ लोगों को अनायास गुरु और शिष्य के बारे में ध्यान आया, उन्हें पकड़ लिया गया और जब वे चुपचाप नगर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे तो हम लोगों को एक राजा और मंत्री की आवश्यकता है, किसी ने कहा। अन्य इससे सहमत हो गए। ओके, उन्होंने गुरुजी और शिष्य से अपना राजा व मंत्री बनने की प्रार्थना की। ओके, शिष्य को मनाने में अनेक तर्क वितर्कों का आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन गुरुजी को मनाने में अधिक समय लगा। वे अंततः मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के राज्य पर शासन करने को इस शर्त पर सहमत हो गए कि हम पुराने सारे कानून बदल देंगे। ठीक है, कौन से कानून? यानी जो कि पहले दिन में लोग सोते थे, पूरे दिन सोते थे और रात में जगते थे और हर माल 1 रुपये में मिलता था। ओके, तब से रात फिर से रात हो गई और दिन फिर से दिन हो गए। आप एक डड्डू में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते थे, वह अन्य किसी स्थान के जैसा हो गया। यानी कोई चीज़ कितने भाव थी, कोई चीज़ के कुछ और भाव थे, ये नहीं कि पहले की तरह हो था, यानी सब कुछ चेंज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you enjoyed my class. Okay, I hope you enjoyed my students. I hope you enjoyed my class. That's it for today. Thank you. All the best.